So cloning vector, we started cloning vector. So in morning class we have seen cloning vector. It is having ORI site, ठीक है ना? ORI site, then ROP, and plasmid is also having ampicillin resistant gene and also tetracycline resistant gene, correct? Apart from all these sites, PBR 322 is also having many recognition sites. जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में हमें मिलेगा एक बाम H1 साइट, SAL1, बाम H1, SAL1, and then ampicillin resistant gene is also having PVU1, PST1, and PBR 322 can also be cutted here by using ECO R1, HIND3, CLA1 भी यूज कर सकते हैं, CLA1. In between ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene, how many recognition sites are present? How many recognition sites are present in between ampicillin? Okay, PBR 322, it is having two antibiotic resistant genes, ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene. And we were talking about recognition sites. Recognition sites means those areas of the plasmid which are recognized by Ren enzyme. Actually, the areas where Ren enzyme act, the areas where Ren enzyme cut the plasmid, those areas are called recognition sites. इवन ROP में भी जो है यहां पर एक रिकॉग्निशन साइट है, PVU2 है, यहां पर PVU2 भी है. So now our work start here. What are the parts, different parts जो भी यहाँ पे PBR 322 में जितने भी सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, इन सभी सीक्वेंस के बारे में आप जानना पड़ेगा. So starting with ORI. ORI help in self replication of the plasmid. ORI क्या कर रहा है? Self replication of the plasmid कर रहा है. So one by one, all the PBR 322 properties we are going to write. PBR 322. Number one, ORI. It maintain copy number. Already morning we have seen it maintain copy number necessary for self replication. सेल्फ रेप्लिकेशन है ना, प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेट करता है. प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए. Plasmid is not dependent on the genomic DNA for its replication. Plasmid replicates independently. Independently from the main chromosomal DNA. Whether plasmid is dependent on main chromosomal DNA? No, it's not dependent on main chromosomal DNA. It multiply independently from the main chromosomal DNA within the bacteria or out of the bacteria? Within the bacterial cell. Yes, we are not talking about in vitro replication. We are talking about in vivo,
बैक्टीरिया के अंदर ही प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होगा. आउटसाइड द बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज नॉट रेप्लिकेटिंग, इट रेप्लिकेट ओनली विद इन द बैक्टीरियल सेल. ठीक है. एंड ORI, it is the indispensable gene, it cannot be replaced, it cannot be cutted, नहीं कट करना है इसको. इंडिस्पेंसिबल है, इंडिस्पेंसिबल है, इरिप्लेसेबल है, इरिप्लेसेबल है ना, इसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए. If plasmids are cutted at ORI site, then plasmid loses the property of self-replication. So why we are using plasmid? Because plasmid is capable of self-replication. ORI also help in replication of inserted gene, inserted foreign gene. जो जीन आप इंसर्ट किए हैं प्लाज्मिड में, वो जीन का मल्टीप्लिकेशन भी कराता है. प्लाज्मिड का तो मल्टीप्लिकेशन कराएगा ही, and the inserted gene also multiply because of ORI. Inserted gene also multiply. Inserted gene also multiply because of ORI. Suppose अगर प्लाज्मिड 15 to 20 टाइम्स रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसके अंदर जो इंसर्टेड जीन है दैट आल्सो मल्टीप्लाई 15 to 20 टाइम्स. ठीक है. यस, दिस इज अबाउट ORI. नेक्स्ट, प्लाज्मिड्स कैसे हैं? सर्कुलर हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं. सर्कुलर हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं, ये भी प्रॉपर्टी याद रखना चाहिए. सर्कुलर हैं प्लाज्मिड, PBR 322 के बारे में सारा चीजें लिखना है. सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है. सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेबल. सेल्फ रेप्लिकेबल है. दिस इज second point of PBR 322. Third point of PBR 322 is about selectable markers. Selectable markers. PBR 322 is having selection markers. Antibiotic resistant genes को बोलते हैं हम selection marker. Which genes are called selectable markers? Antibiotic genes. Antibiotic genes are called selectable markers. Okay. PBR 322, how you are going to identify based on the selectable markers? PBR 322 is having two selection markers. Is having two antibiotic resistant gene. Antibiotic resistance gene. Ampicillin resistant gene. Ampicillin resistance gene. Tetracycline resistant gene. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी होते हैं. अपार्ट फ्रॉम AMPR एंड TTR. अब AMPR बोलते समझते हैं आप, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. अपार्ट फ्रॉम AMPR, TTR, ठीक है, अदर एंटीबायोटिक जीन्स कैन आल्सो बी यूज्ड. Other antibiotic resistant gene can also be used. Can also be used like resistant gene from
resistant gene from chloramphenicol, kanamycin, ठीक है, एटसेट्रा। और दूसरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी यूज कर सकते हैं, बट नॉट इन पीबीआर 322. So my PBR 322 is having two antibiotic resistant gene. What are those antibiotic resistant gene? Ampicillin and tetracycline. We can use other antibiotic resistant gene also in other plasmid, not in PBR 322. Chloramphenicol, kanamycin. These antibiotic resistant gene, these antibiotic resistance gene are not naturally present, are not naturally present, not naturally present in E. coli. They are not naturally present in E. coli. We are using it as a selection marker. We are using it. ठीक है, सपोज एक रिंग है and that ring is having one pink stone and one blue stone, and those two stones are acting as selection marker to identify that ring out of hundreds of rings. If you mix this ring with other 100 rings, you can identify it very easily because it is having selection marker pink stone, blue stone. ठीक है, क्लियर है ना? सिलेक्शन मार्कर हम लगाए हैं, पहले रिंग बनाए, फिर रिंग बना के उसको स्टोन लगाए, बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग रिंग. सपोज वी आर यूजिंग सिलेक्शन मार्कर, एंड दो सिलेक्शन मार्कर आर पिंक स्टोन एंड ब्लू स्टोन. ठीक है, तो ये सिलेक्शन मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं. जैसा रिंग में हम स्टोन को यूज करते हैं सिलेक्शन मार्कर के लिए, इन दैट वे प्लाज्मिड में हम क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. टोटली 4 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बता दिया हूं मैं आपको. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन. But PBR 322 is having only 2. What are those 2? Ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene. Whether these resistant gene are naturally present, they are not naturally present in E. coli. We are giving them. We are giving ampicillin, tetracycline, है ना, PBR 322. Whether it is a naturally occurring plasmid? No. PBR 322 is artificially constructed plasmid. It is designed plasmid so that its identification becomes very easy. क्लियर है? तो ये था सिलेक्शन मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. Apart from ORI selection marker, the third important property of cloning vector is cloning site. क्लोनिंग साइट क्या होता है? क्लोनिंग साइट क्या है? द रीजन वेयर प्लाज्मिड इज कटेड. The region where plasmid is cutted and foreign gene is inserted. क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है? द रीजन वेयर प्लाज्मिड इज कटेड and foreign gene is inserted is called cloning site. Cloning site. जहां पे हम प्लाज्मिड को कट करके फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं, दैट एरिया, दैट मच एरिया ओनली कॉल्ड क्लोनिंग साइट. आइडियल प्लाज्मिड जो होता है
आइडियल मतलब बेस्ट. आइडियल प्लाज्मिड कंटेन, यस, few recognition sites. Few recognition sites, preferably single recognition site. क्या मतलब? जो आइडियल प्लाज्मिड होता है, बेस्ट प्लाज्मिड होता है, उसमें फ्यू रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए. जैसे हमारे पास पीबीआर 322 को कट करने के लिए बाम H1 है, साल 1 है, PST1 है, PVU1 है, हिंद 3 है, क्लॉ 1 है, EcoR1 है और PVU2 भी है. आइडियल प्लाज्मिड हैव फ्यू रिकॉग्निशन. इतने ही है ना, 1 2 3 4 7 8. 8 मतलब फ्यू है, 100 तो नहीं है, 100 रिकॉग्निशन साइट तो नहीं है. आइडियल प्लाज्मिड शुड हैव few recognition site. Few recognition site. Preferably, अच्छा है अगर एक ही रिकॉग्निशन साइट रहा तो, क्योंकि हमारे को एक ही जीन लगाना है प्लाज्मिड को. ठीक है. इफ यू कट प्लाज्मिड एट 8 डिफरेंट साइट्स, मल्टीपल कट साइट्स आर कटेड, देन इट विल कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस. अगर 8 प्लेसेस में अगर आप कट करेंगे प्लाज्मिड अब, तो ज्वाइन नहीं होगा 8 प्लेसेस में कट करेंगे तो. So ideal plasmid should have single recognition site. आइडियल जो प्लाज्मिड है उसमें फ्यू या नहीं तो सिंगल रिकॉग्निशन साइट. ठीक है. इट शुड नॉट हैव मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट? मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस. वो कैसे? मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट अगर कट हो जाएंगे, अगर 8 प्लेसेस में कट करेंगे तो क्या 8 जीन्स अटैच करेंगे आप? नहीं. यू वांटेड, यू आर इंटरेस्टेड टू मल्टीप्लाई ओनली वन पर्टिकुलर जीन. सो दैट्स व्हाई आइडियल प्लाज्मिड शुड हैव फ्यू, प्रीफरेबली सिंगल. बेस्ट एक ही रहा तो बेस्ट है. अब पीबीआर 322 की बात कीजिए. पीबीआर 322 has ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene. ठीक है. पीबीआर 322 के पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है. कट एनी वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. cut any one antibiotic resistance gene. Your choice. You can cut either ampicillin resistant area or you can cut tetracycline resistance area. Cut any one. Don't cut both. Cut any one antibiotic resistant gene. Let's cut the tetracycline resistant gene by using, क्या यूज कर सकता हूं मैं? बाम H1 यूज कर सकता हूं. बाम H1. Let's cut the tetracycline resistant gene by using BAM H1. BAM H1. Let's cut the यहां से मेन चल रहा है देखिए. Let's cut the tetracycline resistant gene by using BAM H1. And in this area, foreign gene is inserted. Foreign gene is inserted, forming what? Recombinant DNA. Forming recombinant DNA. ठीक है. Forming recombinant DNA. Any question here? क्या बोला मैं? 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उसमें से एक को कट करेंगे
चलो टेट्रासाइक्लिन को कट करे, टेट्रासाइक्लिन को कट करके फॉरेन जीन लगा दीजिए तो बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ दिस इज इंसर्टेड, नाउ दिस recombinant DNA is transferred to E. coli host cell. E. coli host cell में ट्रांसफर कर देंगे अभी. Now this recombinant DNA is transferred to E. coli host cell forming, क्या बनेगा? Forming transformant. Okay. So many students they ask what is the difference between recombinant and transformant. Recombinant, transformant. NCERT में क्लियर नहीं लिखा है recombinant और transformant. NCERT में तो वर्ड यूज किया है recombinant और transformant, मीनिंग नहीं बताया. मैं क्या बोल रहा हूं आपको, PBR 322 लेंगे, टेट्रासाइक्लिन कट करेंगे, फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे टेट्रासाइक्लिन एरिया पर, फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब बैक्टीरिया में डालेंगे तो बैक्टीरिया क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्मेंट. अब क्वेश्चन ये है कि हाउ यू डिस्टिंग्विश रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, और हाउ यू डिस्टिंग्विश फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. क्वेश्चन समझ में आया आपको? to distinguish transformant from किससे? from non transformant. to distinguish transformant from non transformant, फर्स्ट आप बताइए, मीनिंग बताइए, ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोलते हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया जिसमें आरडीएनए है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट, एंड बैक्टीरिया विदाउट आरडीएनए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, टू कल्चर मीडिया आर प्रिपेयर्ड. टू कल्चर media are prepared. One containing ampicillin antibiotic, another containing tetracycline antibiotic. मतलब वो क्या बोल रहा है, मैं आरडीएनए बनाया, आरडीएनए बनाकर बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेंट हो गया. अब प्रॉब्लम क्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग एवरीवेयर. हाउ टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. कौन से बैक्टीरिया में आरडीएनए है, कौन से बैक्टीरिया में नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बैक्टीरिया तो इतने छोटे हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बैक्टीरिया देखना ही मुश्किल है, उसके अंदर का आरडीएनए कहां से दिखेगा आपको? आरडीएनए है तो तुम ट्रांसफॉर्मेंट है, आरडीएनए नहीं है तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. इसके लिए क्या बता रहा है, टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, लेट्स प्रिपेयर टू कल्चर मीडिया. एक मीडियम में रखेंगे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक, दूसरे मीडियम में रखेंगे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. जैसे ये कल्चर मीडिया है, इसमें रखेंगे एम्पिसिलिन मीडियम, और एक मीडियम है जिसमें टेट्रासाइक्लिन मीडियम है. ठीक है. Now some of the bacteria are growing in ampicillin medium. The bacteria which are growing and forming colonies in ampicillin medium में बैक्टीरिया कॉलोनी बना रहा है. ऐसा हो सकता है ना, एक बैक्टीरिया है
वो बैक्टीरिया में PBr322 है, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, और उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है. वेदर इट इज ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, दोनों अगर एंटीबायोटिक रहेंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है. इफ बैक्टीरिया इज हैविंग ओनली वन, सपोज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है इसके पास, टेट्रासाइक्लिन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जगह पर कोई और जीन लगाया गया है. अभी अभी कट करे ना बाम H1 से, बाम H1 यूज करके आपने टेट्रासाइक्लिन डिलीट किया और फॉरेन जीन इंसर्ट किया. नाउ इट इज ट्रांसफॉर्मेंट. नाउ टेल मी, whether transformant grow in ampicillin medium or non-transformant grow in ampicillin medium, or both will grow in ampicillin medium? कौन ग्रो होंगे? दोनों ग्रो होंगे, क्योंकि दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है. ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो हो रहा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी ग्रो हो रहा है. इसका मतलब ये जो कॉलोनी बन रही है बैक्टीरिया की, ये हो सकता है ट्रांसफॉर्मेंट, ये हो सकता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. आई कैन नॉट आइडेंटिफाई इन एम्पिसिलिन मीडियम, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेंट के पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है. देन हाउ डू यू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेंट इज नॉट हैविंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. अभी यही बोल दो, अगर नहीं समझ में आया तो अभी बोल दो. क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब पूरा उसके पास कंप्लीट प्लाज्मिड है, कोई फॉरेन जीन नहीं है उसके पास, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन. दैट मींस इट इज नॉट हैविंग आरडीएनए. बट ट्रांसफॉर्मेंट इज हैविंग आरडीएनए, नॉट हैविंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. अब मैं क्या करता हूं, लेट्स से दिस कॉलोनी, बैक्टीरियल कॉलोनी विच इज ग्रोइंग इन एम्पिसिलिन मीडियम, ये कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट है क्या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, मालूम करना है मेरे को. तो ये कॉलोनी में के कुछ बैक्टीरिया 1 2 3 4 इतने थोड़े बैक्टीरिया निकाल के टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालूंगा मैं. अगर वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो हुए, दैट मीन्स इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. दोनों तरफ ग्रो हो रहे हैं वो. दिस कॉलोनी इज ग्रोइंग इन एम्पिसिलिन मीडियम and also growing in tetracycline medium. That means it is not transformant, it is having both the resistant gene, ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. Now let's transfer this colony. ये कॉलोनी के बारे में पता नहीं है मेरे को, तो ये कॉलोनी के कुछ बैक्टीरिया मैं यहां पर लाके डाला तो ग्रो ही नहीं हो रहा. नॉट ग्रोविंग, नॉट ग्रोविंग. That means those bacterial cells which can grow in ampicillin medium cannot grow in tetracycline medium. Definitely they are transformant. So in this case, one antibiotic resistant gene help in selection of recombinant. दो antibiotic resistant gene थे. One antibiotic resistant gene help in selection of recombinant or transformant. Another antibiotic resistant gene is deleted by insertion of foreign gene. तो कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपको सिलेक्शन में हेल्प की है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन सिलेक्शन में हेल्प कर रही है. टेट्रासाइक्लिन तो डिलीट हो गई है. मतलब अगर ये कॉलोनी यहां पर नहीं ग्रो हो रही है, मतलब ये कॉलोनी में जितने भी बैक्टीरिया हैं ऑल दे आर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. ट्रांसफॉर्मेंट क्लियर है? अब ये कॉलोनी, सपोज अगर ये कॉलोनी के बैक्टीरिया यहां पर डालेंगे, दोनों तरफ ग्रो हो रहे हैं, दैट मीन्स नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. समझ में आ गया? चलो ऐसे आइडेंटिफाई करना है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. समझ में आया? टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, two culture media are prepared, one containing ampicillin antibiotic, another containing tetracycline antibiotic. ठीक है?
यहां पे ग्रो करके दिखाएंगे, ग्रो करके दिखाएंगे। अगर दोनों तरफ ग्रो हो रहा है दैट मीन्स इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नहीं, एक ही तरफ ग्रो हो रहा है एम्पिसिलिन में but not growing in tetracycline, that means it is transformant. It's a very simple direct concept. यहां लिखना, हम क्या लिखना, ट्रांसफॉर्मेंट and non-transformant both can grow in ampicillin medium, both can grow in ampicillin medium, दोनों एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो हो सकते हैं। सही बोल रहा हूं ना? but transformant cannot grow in tetracycline medium. Transformant cannot grow. You should know the reason why transformant cannot grow. You are having reason. It is not growing in tetracycline medium because the plasmid is deleted from tetracycline. Transformant cannot grow in tetracycline medium. And the non-transformant grow इन बोथ द मीडियम। ठीक है, उसका तो कुछ डिलीट ही नहीं हुआ तो दोनों तरफ रह सकता है। बोथ द मीडियम non transformant grow in both the medium। ठीक है, okay। some people they are having more attraction or more affection towards maternal grandmother, and some people are having more affection towards पैटर्नल ग्रैंडमदर। लेकिन ये बोलने की बात नहीं रहती है ना। whom you like very much, maternal grandmother और पैटर्नल ग्रैंडमदर, तो बोलो मत। so I like both बोलना पड़ता। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, मदर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि रियल में क्या ज्यादा पसंद है इसको। तो है ना, उसको क्या करे मालूम है, हॉलीडेज में ले जाके मैटरनल ग्रैंडमदर के पास रखे। ठीक है, तो रह लिया वो 10 डेज तक यहीं पे रह गया वो। फिर उसको निकाल के वहां पे पैटर्नल ग्रैंडमदर के पास रखे, एक भी दिन नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, नॉट हैविंग, जो बोल रहा था फॉर्मेलिटी के लिए, नॉट हैविंग अफेक्शन। तो ऐसा हो गया केस ये। चलो नेक्स्ट। सो selection of transformant based on antibiotic resistant gene is easy or difficult? अब बोलो, रियल में बोलो। selection of recombinant or transformant based on antibiotic resistance is a difficult process, क्योंकि दो कल्चर मीडियम बनाओ, पहले ग्रो हो रहा क्या नहीं देखो, 2-3 डेज ग्रो हो रहा है या नहीं देखो, फिर वहां से निकाल के दूसरे मीडियम में रखो। इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट गिविंग स्पॉन्टेनियस रिजल्ट, है ना। हो सकता है 1 वीक भी लग जाए मालूम करते करते। ठीक है ना। सो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट based on antibiotic resistant gene is a, क्या लिखा है बुक में, क्यूम्बरसम प्रोसीजर। इज ए क्यूम्बरसम प्रोसीजर मतलब डिफिकल्ट प्रोसीजर। क्यूम्बरसम प्रोसीजर मतलब आसान नहीं है, ये मुश्किल है।
कल्चर मीडियम बनाओ, ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा देखो. इट इज टेकिंग मोर टाइम एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग and it requires simultaneous preparation of two culture media. It require simultaneous preparation of two culture media. Two culture media. दो कल्चर मीडियम बनाओ, साइमल्टेनियसली दो कल्चर मीडियम. इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. ठीक है. और यहां पर एक नोट लिखना, इन ट्रांसफॉर्मेंट वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, कोई एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या कर रहा था? इन ट्रांसफॉर्मेंट वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन selection of recombinant, and the another antibiotic resistant gene, another antibiotic resistant gene gets inactivated. सही है ना? कोई नई बात क्या पता है? ये क्लियर हो गया है ना कॉन्सेप्ट? ये ट्रांसफॉर्मेंट में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिलेक्शन में हेल्प करेगा और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो डिलीट ही हो गया. अनदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड. इनएक्टिवेटेड क्यों? डिलीट करे ना आप ही, डिलीट करे ना. टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को डिलीट नहीं करे बाम H1 यूज करके, दैट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिवेटेड. सो लेफ्ट वन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बचा था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दैट इज हेल्पिंग फॉर सिलेक्शन. ठीक है. कॉन्सेप्ट उतना आसान नहीं है. चल रहा है ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा टाइम देना. आप भी पढ़ना है, 2 बार पढ़ना, 3 टाइम्स पढ़ना, तब समझ में आता. सो ये तो डिफिकल्ट है बोला मैं. कोई आसान तरीका है क्या? Selection of recombinant, very quickly. Selection of recombinant quickly, possible by chromogenic substrate, using the gene beta galactosidase. मतलब मैं आपको एक अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं. ओके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का समझ में आया और बोल रहा हूं मैं, इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग डिफिकल्ट प्रोसेस. अनदर वेरी क्विक प्रोसेस, क्विक है ना, नो नीड टू प्रिपेयर टू कल्चर मीडियम. Quickly one can identify which one is recombinant, which one is non-recombinant. बहुत जल्दी बोल सकते हैं ये मेथड से. इसके लिए क्या करना है? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यूज करना है और जीन यूज करना है बीटा गैलेक्टोसाइडेस. तो एक ऐसा प्लाज्मिड यूज करो जिसमें है बीटा गैलेक्टोसाइडेस. क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेस. This beta galactosidase, it act on chromogenic substance and make blue colored colonies. Plasmid with beta galactosidase make blue colored colonies.
ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। मतलब ये प्लाज्मिड है और उसके पास एक एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये जीन की वजह से कॉलोनी का कलर क्या आ रहा है, ब्लू कलर। इफ दिस बीटा galactosidase if this beta galactosidase producing if this beta galactosidase producing gene is replace कर देंगे। if this beta galactosidase producing gene is replaced by some other genes, what happens? Whether the non-recombinant or recombinant are producing colonies colored, plasmid with beta galactosidase make blue colored colonies. If this beta galactosidase producing gene is replaced by some other gene, मतलब एक प्लाज्मिड था उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जीन थी, उसको हम डिलीट करके रिकॉम्बिनेंट बनाए, एक रिकॉम्बिनेंट बनाए आरडीएनए, ठीक है ना। तो ये था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट, और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है, रिकॉम्बिनेंट है। सो हु इज प्रोड्यूसिंग कलर? बीटा गैलेक्टोसाइडेज कंटेनिंग प्लाज्मिड इज प्रोड्यूसिंग कलर। सो मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज कंटेनिंग plasmid is producing color and it is a non-transformant, whereas transformant is not producing any color because beta galactosidase gene is deleted, ठीक है। inactivation of beta galactosidase gene due to insertion of foreign gene is called insertional inactivation था। मतलब पहले आपके पास एक रिंग था जिसपे ब्लू स्टोन था, ठीक है, और बोले ये नहीं होना, हमारे को ब्लू स्टोन नहीं होना, निकाल दिए, और कौन सा भी स्टोन नहीं चाहिए हमारे को, कलर ही नहीं चाहिए, कलरलेस। मतलब मॉडिफिकेशन करने के बाद कलरलेस हो गया, मॉडिफिकेशन से पहले क्या था, कलर था, ऐसा समझने। तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट प्रोड्यूसेस colorless colonies and non-transformant produces कौन से कलर, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। ट्रांसफॉर्मेंट प्रोड्यूसेस कलरलेस कॉलोनीज। यू शुड नो रीजन क्यों आ रहा है कलरलेस। कलर आ रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज डिलीट कर दिए ना आप। क्यों डिलीट करे, टू इंसर्ट द फॉरेन जीन। नाउ बेस्ड ऑन द कलर वन कैन इजीली आइडेंटिफाई, ब्लू कलर कॉलोनीज आते ही बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कलरलेस कॉलोनी आते ही ट्रांसफॉर्मेंट। आसान है ना मेथड ये। कल्चर मीडियम बनाए और ये ब्लू कलर कॉलोनीज आ गया, ब्लू कलर कॉलोनीज, और ये क्या है, कलरलेस कॉलोनी है। ब्लू कलर कॉलोनीज बोलो आप, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और कलरलेस कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट। अब कभी भी पढ़ना है ये कॉन्सेप्ट तो ये डायग्राम देख लेना।
हो जाता पैराग्राफ, फिर एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कलरलेस आ गया तो ट्रांसफॉर्मेंट है। और कलर क्यों आ रहा है उसका रीजन मालूम रहना आपको। बीटा गैलेक्टोसाइडेस की वजह से कलर आ रहा था। Which one is easy method? Whether PBR 322, ampicillin resistant gene, tetracycline वो वाला अच्छा था या ये वाला अच्छा है? ये वाला अच्छा है ना, एक ही सिलेक्शन ऐसा देखते ही मालूम हो गया, कॉलोनीज देखते ही पता चल गया who is transformant and non transformant। टर्म देख लेंगे। what is the best what is the best vector for gene delivery in plant cell? Best vector for gene delivery into the plant cell. Best vector for gene delivery into the plant cell is Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens. This bacteria is pathogenic, causes crown gall मतलब प्लांट कैंसर इन डाइकॉट प्लांट्स। एक मिनट रुको, मैं क्या बोल रहा हूं? अग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस बहुत ही डेडली बैक्टीरिया है, कैंसर कर रहा है, और उसको मैं बोल रहा हूं सबसे बेस्ट है। डेडली भी है और बेस्ट भी है, टेररिस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। क्या करना आप? टेररिस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? किल कर देना चाहिए या हाथ पैर तोड़ देना चाहिए इनके? ठीक है, डिसआर्म करके उनको यूज करना चाहिए, उनका माइंड यूज करना चाहिए। तो ह्यूमन कौन से लेवल पे पहुंच गया देखिए, इवन पैथोजन को भी, जो डेडली पैथोजन है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं हम, उसको भी यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस एक डेडली बैक्टीरिया, उसको भी हम यूज करने वाले हैं। ये प्लांट को अटैक करना जानता है, हाउ टू अटैक द प्लांट। तो ये उसका क्या बोलते हैं, स्किल है। अग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस का एक स्किल है, इट कैन इन्फेक्ट द प्लांट। लेट्स यूज दैट स्किल। It has this bacteria, okay, this bacteria has TI plasmid। कौन सा प्लाज्मिड है? TI प्लाज्मिड मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग plasmid। This bacteria has TI plasmid मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग plasmid। तो ह्यूमन सोचा वेदर कंप्लीट TI plasmid इज पैथोजेनिक। ये रहा TI plasmid, सर्च करे पता चला TI प्लाज्मिड पूरा अच्छा है, बस इसमें एक पार्ट है, TDNA बोल के पार्ट है, उतना ही बहुत डेडली है, बस इतना ही डेडली है। समझ गए? ठीक है, ये देखो, ये कोरोना वायरस है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके जो ऊपर के जो स्पाइक्स है ना, उतने डेडली हैं बस। ये ऊपर के स्पाइक्स डेडली हैं, किसी तरीके से हम स्पाइक्स अगर निकाल दिए तो ये नॉन पैथोजेनिक बन जाएगा। सेम ऐसे ही टीआई प्लाज्मिड में सिर्फ टीडीएनए उतना ही डेडली है, बस उसको डिलीट कर दो, बाकी का यूज कर लो। टीआई प्लाज्मिड हैज TDNA,
has tDNA which transform normal plant cell into cancerous cell. नॉर्मल प्लांट सेल को कैंसरस सेल कौन कर रहा है? tDNA. Where is the tDNA? tDNA is present in TI plasmid. TI plasmid is having tDNA, and that much only area tDNA, only this much area only pathogenic. इतना ही एरिया पैथोजेनिक है. तो लिखे हम यहां पर the TI plasmid in which tDNA is deleted. tDNA is deleted and foreign gene is inserted, and foreign genes are inserted. TI plasmids में tDNA delete करो और foreign gene insert करो. Such vectors are called, such deadly vectors जहां से पैथोजेनिक जीन डिलीट किए हैं, such vectors are called, क्या बोलना? डिसआर्म्ड वेक्टर. डिसआर्म वेक्टर बोल रहा है. ये तो प्लांट के बारे में हुआ. बेस्ट वेक्टर फॉर जीन डिलीवरी इन प्लांट सेल. व्हाट इज द बेस्ट वेक्टर फॉर जीन डिलीवरी इन प्लांट सेल? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस. कौन सा प्लाज्मिड है उसके पास? टीआई प्लाज्मिड है. टीआई प्लाज्मिड में कौन सा पार्ट डिलीट करना चाहिए? tDNA डिलीट करना चाहिए. Retroviruses are best vector for gene delivery. Best vector for gene delivery into the animal cell. एनिमल सेल में जीन डिलीवर करना रहा तो रिट्रोवायरस बेस्ट है. रिट्रोवायरस, जरा सोचो, रिट्रोवायरस किसको बोल रहा हूं मैं? HIV को बोल रहा हूं. वो बहुत ज्यादा स्किल्ड वायरस है. इट नोज हाउ टू अटैक द होस्ट. बस उसके क्या करना है? पैथोजेनिक जीन डिलीट कर देना है. डिसआर्म्ड retroviruses are used for gene delivery. जीन डिलीवरी पोस्टमैन की तरह ये जीन जाके डिलीवर कर देगा. जीन डिलीवरी इनटू द होस्ट सेल. डिसआर्म वेक्टर यूज करना चाहिए. कंप्लीट रिट्रोवायरस नहीं यूज करना. कंप्लीट टीआई प्लाज्मिड नहीं यूज करना. डिसआर्म करके यूज करना चाहिए. ओके, तो यहां तक पढ़ लीजिए सब लोग. यहां तक रहेगा टेस्ट में. आगे का जो हम कंटिन्यू करना है, द प्रोसेस ऑफ जीन डिलीवरी इनटू द प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.